یسوع المسیح کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ میرا نام ہے مون حمید اور آج آپ میرے ساتھ جو ٹاپک پڑھیں گے وہ ہے خدا کا مقدس۔ تو آئیں میرے ساتھ نکالیں خروج 25 باب اس کی 8 آیت، اور وہ میرے لیے ایک مقدس بنائیں تاکہ میں ان کے درمیان سکونت کروں۔ سب سے پہلے جب ہم چرچ کی بات کرتے ہیں، ایک مقدس بنانے کی، ایک چرچ کی، تو ہمارے ذہن میں ایک بات آتی ہے، یا اگر میں آپ سے پوچھوں کہ چرچ کیا ہے تو یقیناً آپ کے ذہن میں ایک اس طرح کی مستطیل عمارت آ سکتی ہے، یا پھر جس چرچ میں آپ بیٹھے ہیں اس کی تصویر، اس کی امیج آپ کے تخیل میں آئے گی، آپ کے مائنڈ میں کریٹ ہو جائے گی۔ مگر یاد رکھیے گا، جو چرچ ہم چرچ سوچتے ہیں وہ چرچ نہیں ہے، وہ چرچ بلڈنگ ہوتی ہے۔ چرچ کا مطلب ہے کلیسیا، خدا کا گروہ۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ چیز کلیئر کرنی ہوگی کہ جہاں پر ہم بیٹھ کے خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ چرچ نہیں ہے، وہ چرچ بلڈنگ ہے۔ چرچ ہم خود ہیں، کلیسیا ہم خود ہیں۔ تو اسی بات کو میں آگے لے کے چلتا ہوں، اور اسی بات کو آج ہم سیکھیں گے کہ خدا کا مقدس کیا ہے، جہاں پر خدا سکونت کرنا چاہتا ہے۔ جب ہم باغ عدن میں دیکھتے ہیں خدا کے سکونت کرنے کی بات کو اور خدا کے وہاں پر ٹھہرنے کی بات کو، اور ہم دیکھتے ہیں پیدائش 3 باب اس کی 8 آیت، اور انہوں نے خدا کی آواز جو ٹھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھا سنی۔ یہاں پر لفظ باغ میں پھرتا تھا سے مراد وہاں پر رہنا۔ اگر خدا وہاں پر سکونت کر رہا ہے، اگر خدا وہاں پر رہ رہا ہے تو پھر وہاں پر خدا پھرے گا نا۔ کہنے سے مراد یہ کہ دیکھیے، جس طرح پہلے لیکچر میں جب ہم خیمہ اجتماع پڑھ رہے تھے تو اس وقت بھی میں نے ایک بات آپ سے کہی تھی کہ وہ خدا جو کہ آسمانوں کے آسمان میں بھی سما نہیں سکتا، وہ خدا جس کا تخت آسمان ہے اور زمین اس کے پاؤں کی چوکی ہے، وہ کیوں ہمیں عبادت گاہ یا خیمہ یا پھر مقدس بنانے کے لیے کہتا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ سکونت کرنا۔ تو یاد رکھیے گا، یہاں پر خدا باغ عدن میں اپنی ایک بادشاہت قائم کرتا ہوا اپنے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، سکونت کرنا چاہتا تھا۔ مگر ہم جانتے ہیں کہ وہ سکونت گاہ، وہ بادشاہت، وہ سکون گناہ کی وجہ سے قائم نہ رہ سکا۔ اور پھر خدا نے جب شریعت کے دور میں آیا تو خدا نے کہا کہ میرے لیے خیمہ اجتماع بناؤ۔ اب خیمہ اجتماع کچھ یوں دکھتا تھا، اور خیمہ اجتماع میں بھی خدا سکونت کرتا تھا۔ وہاں پر خدا کا ابر رہتا تھا، دن کو بادل کی شکل میں اور رات کو آگ کے ستون کی شکل میں۔ جس طرح آپ تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر یہاں پر دن ہے تو پاک ترین مقام کے اوپر بادل کا ستون بنا ہوا ہے۔ تو اس طرح خدا کی حضوری وہاں پر ہوتی تھی، خدا وہاں پر سکونت کیا کرتا تھا، خدا وہاں پر رہا کرتا تھا، خدا کی حضوری وہاں پر پائی جاتی تھی۔ اس کا حوالہ ہمیں خروج 40 باب اس کی 34 آیت میں ملتا ہے۔ تب خیمہ اجتماع پر ابر چھا گیا اور مسکن خداوند کے جلال سے معمور ہو گیا۔ تو یاد رکھیے گا، ابر چھا جانا یعنی اس جگہ پر بادل چھا جانا اور اس جگہ کے اوپر بادل کا ستون بن جانا، یہ خداوند کے وہاں پر سکونت کرنے کی اور خداوند کے وہاں پر ٹھہر جانے کی نشانی تھی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب خیمہ اجتماع مکمل طور پر وہاں نہ رہ پایا تو اس کے
जाने का वक्त हुआ, ख़त्म होने का वक्त हुआ, तो उसके बाद सुलेमान ने हैकल बनवाई, जिसको हैकल सुलेमानी भी कहा जाता है। ये दिखने में कुछ यूं थी, ऑल्दो ये पिक्चर एग्जैक्ट वो नहीं है, तो भी इंसानों की इमेजिनेशन ने और बाइबल मुकद्दस के साथ उसको मिलाकर जो कुछ एक इंसान ने इमेज बनाई वो कुछ इस तरह के सामने नजर आती है। और हम देख सकते हैं कि कितनी आलीशान हैकल बनवाई गई। इसका हवाला हम देखते हैं दूसरा तवारीख 2 बाब उसकी 4 आयत। और सुलेमान कहता है, मैं खुदावंद अपने खुदा के नाम के लिए एक घर बनाने को हूं कि उसके लिए मुकद्दस करूं, उसके लिए मुकद्दस करूं, यानी उसके रहने के लिए पाक करूं, उसके सकूनत करने के लिए, उसके ठहर जाने के लिए जगह बनाऊं, और उसके आगे खुशबूदार मसाले का बखूर जलाऊं, और वो सबतों और नए चांदों और खुदावंद हमारे खुदा की मुकर्ररा ईदों पर दायमी नज़र की रोटी और सुबह और शाम की सोखनी कुर्बानियों के लिए हो, क्योंकि ये अब तक इसराइल पर फर्ज है। मगर याद रखिएगा, ये हैकल भी कायम ना रह सकी और ये 586 कबल अज़ मसीह में तबाह और बर्बाद हो गई। जब हैकल 586 कबल अज़ मसीह में तबाह और बर्बाद होगी और इसका सब कुछ जाता रहा, इसके बर्तन, यहां तक कि इसकी सारी चीजें और सब कुछ तबाह और बर्बाद हो गया। हैकल को जला दिया गया, यरूशलेम के फाटक जला दिए गए, हैकल को मुकम्मल तौर पर तहस नहस कर दिया गया, और इसके बर्तन जो हैं वो बाबल को ले गए। उसके बाद दूसरी हैकल हेरोदेस बादशाह के दौर में कायम की गई, जिसको हेरोदेस की हैकल भी कहा जाता है। ये वही हैकल है जो हेरोदेस ने बनवाई और 70 ईस्वी में तबाह हो गई। ये वही हैकल है जिसके बारे में यीशु मसीह ने कहा, इस पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा। ये सामने जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये वो हैकल नहीं है एक्चुअली जो उस वक्त की थी, मगर ये एक बहुत प्यारी 3D ड्राइंग है, ठीक है, ताकि हम उस हैकल को समझ सकें। और जब हम देखते हैं हकीकी हैकल, तो वो यीशु मसीह है, क्योंकि वही पुरानी हैकल में जहां की मैं अभी बात कर रहा था, उसी हैकल में खड़े होकर यीशु ने कहा, अगर तुम इस हैकल को ढा दो तो मैं इसको 3 दिन में बनाऊंगा। यूहन्ना 2 बाब उसकी 19 आयत। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, इस मकदस को ढा दो तो मैं उसे 3 दिन में खड़ा करूंगा। और याद रखिएगा, ये उसने अपने बदन के मकदस की बाबत कहा था, ये यीशु मसीह ने अपनी बाबत कहा था। तो यूं हम कह सकते हैं कि यीशु मसीह ही वो हकीकी हैकल है। यूहन्ना 2 बाब उसकी 21 आयत। मगर उसने अपने बदन के मकदस की बाबत कहा था। तो याद रखिएगा, यीशु मसीह का बदन जो हकीकी हैकल, यीशु मसीह खुद जो हकीकी हैकल था, किस तरह हमें खुदा की हजूरी से मिलवाता है, किस तरह दिखाता है कि ये वो जगह है जहां खुदा सकूनत करता है। और आज की हैकल मसीही है। कलाम खुदा कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? तो याद रखिएगा, हमने इस तरह देखा कि बाग़े अदन से लेकर एक मसीही तक किस तरह खुदा की हजूरी, खुदा की सकूनत गाह और खुदा किस तरह अपनी हैकल को, अपनी सकूनत गाह को हमसे मिलवाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि बाग़े अदन में किस तरह खुदा ठंडे वक्त में
बाग में फिरा करता था। उसके बाद खैमा इज्तिमा में हम खुदा की हजूरी को देखते हैं। जब खैमा इज्तिमा ख़त्म हो गया तो हैकल सुलेमानी आई। हैकल सुलेमानी ख़त्म हुई तो दूसरी हैकल यानी हेरोदीस की हैकल। लेकिन उसके बाद हमें एक हकीकी हैकल नज़र आती है जो यीशु मसीह है, और यीशु मसीह के बाद आज की हैकल हम, मैं और आप हैं। आमीन। मगर याद रखिएगा कि जब हम इस बारे में बात करते हैं, अपनी वापस उस मरकज़ी आयत पर आते हैं, और वो मेरे लिए एक मक़दस बनाएं ताकि मैं उनके दरमियान सकूनत करूं। तो अब तक हमने बात की मक़दस के बारे में, उस हैकल के बारे में। अब हम बात करते हैं कि मकसद क्या था, ताकि मैं उनके दरमियान क्या करूं जी, सकूनत करूं। तो याद रखिएगा इस चीज़ का मकसद, ये हैकल दिखाने का मकसद जो था वो क्या था, सकूनत करना। तो सकूनत करना से मुराद ये कि अपना जलाल जाहिर करना। खुदा असल में अपना जलाल हम पर जाहिर करना चाहता था। किस तरह? उस हैकल के ज़रिए, अपनी सकूनत गाह के ज़रिए। क्योंकि जहाँ खुदा का रूह सकूनत करेगा, जहाँ खुदा खुद सकूनत करेगा, डेफिनेटली वहाँ पर खुदा का जलाल होगा। आमीन। हम देखते हैं खैमा इज्तिमा के बारे में। खरूज 40 बाब उसकी 34 आयत में लिखा है, तब खैमा इज्तिमा पर अबर छा गया। यह कब की बात है? जब खैमा इज्तिमा मुकम्मल हो चुका और उसकी मखसूसियत का वक्त आया और काहिन, सरदार काहिन वहां पर खड़े थे, तब खैमा इज्तिमा पर अबर छा गया और मस्कन खुदावंद के जलाल से मामूर हो गया। फिर हम देखते हैं हैकल सुलेमानी की जब मखसूसियत हुई, और वहां पर जब सुलेमान बादशाह वहां पर हाजिर था, उसके साथ सारी टीम, सारे काहिन, सरदार काहिन था, तो ऐसा हुआ, कलाम में लिखा, फिर ऐसा हुआ कि जब काहिन पाक मकान से बाहर निकल आए तो खुदावंद का घर अबर से भर गया। सो काहिन उस अबर के सबब से खिदमत के लिए खड़े ना हो सके, इसलिए कि खुदावंद का घर उसके जलाल से भर गया था। और फिर हम एक अबदी और जलाली हैकल को देखते हैं। ये कौन सी हैकल है? ये वो हैकल है जिसके बारे में हम देखते हैं कि मुकाशफा में यूहन्ना रफ कहता है कि मुझे आसमान से उतरता हुआ यरूशलेम नजर आता है, और वो कैसा है जी? मुकद्दस शहर है। और शहर मुकद्दस जो है, या मुकद्दस शहर जो है, वो यरूशलेम है। और यरूशलेम में क्या था जी? हैकल थी। लिहाजा यरूशलेम जो कि खुदा की सकूनत गाह, या यरूशलेम वो जगह जहां पर खुदा सकूनत करता है, वो खुदा के जलाल से भरा हुआ था। मुकाशफा 21 बाब उसकी 10 से 11 आयत में यूं लिखा है, और वो मुझे रूह में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और शहर मुकद्दस यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते दिखाया। उसमें खुदा का जलाल था और उसकी चमक नहायत कीमती पत्थर यानी उस यशब की सी थी जो बिलौर की तरह साफ हो। और जब हम उस हकीकी हैकल के बारे में बात करते हैं, और खुदा की वो हैकल जो खुद मुजस्सिम हुई यानी यीशु अल मसीह, तो जब वो मुजस्सिम होकर आता है तो कलाम उसके बारे में उसको खुदा के जलाल का परतौ कहता है। इब्रानियों 1 बाब उसकी 3 आयत, वो उसके जलाल का परतौ और उसकी ज़ात का नक्श होकर सब चीज़ों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। तो यहां पर हम देखते हैं उसके जलाल का परतौ। इंग्लिश में इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है द रेडियंस ऑफ हिज ग्लोरी। और फिर जब वही जलाल हम इंसानों में मुनक्सम होता है और हम इंसानों पर आता है, तो उसके बारे में यीशु अल मसीह खुद फरमाते हैं। और ये वो वक्त था जब यीशु अल मसीह अपने शागिर्दों के लिए दुआ कर रहे थे और खुदा बाप से कह रहे थे, और वो जलाल जो तूने मुझे दिया है
میں نے انہیں دیا ہے تاکہ وہ ایک ہوں جیسے ہم ایک ہیں۔ یہاں پر خدا اور یسوع کے ملاپ کی اور ہمارے ملاپ کی بات ہو رہی ہے۔ تو یاد رکھیے گا، جس طرح خدا ایک جلالی ہے اور خدا جو ہے اپنا جلال ظاہر کرنے کے لیے سکونت گاہ تلاش کرتا ہے، اور خدا کو مقدس چاہیے، اور اس کے بعد دکھایا یہ جاتا ہے کہ یسوع مسیح ہی وہ حقیقی ہیکل ہے۔ اور جس طرح اگر یسوع مسیح ہی حقیقی ہیکل ہے تو ہم بھی اس میں ایک ہو کر اسی کے ساتھ ہیکل بن جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے پولس رسول فرماتا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ اس بات کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک ڈائیگرام ہے جس کو ہم کچھ یوں دیکھتے ہیں کہ جس طرح میں اور مسیح ہیں، لیکن جب میں اور مسیح اکٹھے ہوں گے تو یہ کچھ ایک ہو جائیں گے۔ یسوع المسیح کا جلال اور مسیح کا وہ جلال جو مجھ میں دکھتا ہے، جب ایک ہیں تو ہم ایک ہو جائیں گے، اور ہم جو ہے وہ ایک ہیکل کہلائیں گے۔ یعنی مسیح کے ساتھ میں بھی ہیکل ہی کہلاؤں گا، اور اس کو ہم کہتے ہیں مسیح میں اتحاد، یا مسیح میں متحد ہو جانا، مسیح میں ایک ہو جانا۔ عزیزو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ لیکچر اچھے طریقے سے سمجھ آیا کہ کس طرح خدا کا مقدس ہم میں کام کرتا ہے، اور کس طرح خدا کا جلال ہم میں دیکھتا ہے اور ہم خدا کا مقدس بن جاتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔